Today our topic is based on default constraints. What do you mean by default? बार बार मैं एक ही वर्ड कई बार मैं एक बोलती हूँ कि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू ये है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू ये है। मीन्स कि अगर मैं कोई भी मॉडिफिकेशन या कोई एक्स्ट्रा चीज यूज नहीं कर रही हूँ तो सिस्टम अपनी तरफ से क्या यूज कर रहा है, दैट इज डिफॉल्ट. So default constraints ensure that if no entry is filled, then it will take that default value. क्या मतलब हुआ? जैसे सपोज मैंने कहा कि अगर मैं हॉबी में कोई वैल्यू ना डालूं तो बाय डिफॉल्ट उसकी हॉबी डांस रहनी चाहिए. इफ यू विश टू चेंज यू कैन चेंज, बट अगर सपोज किसी ने कोई हॉबी नहीं डाली फॉर्म फिल करते टाइम, तो मैं अज्यूम कर लूं कि सिस्टम की तरफ से इट विल बी डांस. ओके. Can you see my face over here? Actually, my light has gone and it's working with my router. Is my screen visible to you? Yes, ma'am. Fine. I'm just making stop my video because it's not clear. Okay. If you wish, you can also hide your video. Excuse me, ma'am. Yeah. मैम ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट है उसके बारे में एक बार और बता सकते हो बिकॉज जब आप बता रहे थे तब मेरा इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम हो रही थी. Abhi, I will just tell you. Okay. Now, default constraint means suppose if I'm not giving any value, so my default value will be there. मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया, क्रिएट टेबल T1. उसमें मैंने एक फील्ड लिया रोल नंबर, डेटा टाइप इज इंट, उसको मैंने डाल दिया नॉट नल जो हम की मैंने आपको पहले बताया था. उसके बाद मैंने लिखा हॉबी, कैरेक्टर 20 साइज ले लिया. अब अगर हॉबी में कोई वैल्यू नहीं डाले तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या शो होनी चाहिए? डांस. ओके. अब इसको हैव अ लुक ऑन माय माई एसक्यूएल स्क्रीन. वहां पे कैसे करेंगे, इधर देखो. First of all, I will use my database, use D1. Then select star from T1. Okay. Now I'm going to create a new table to apply the default constraint. So what I do, create table T1 is already exist. I want to know that which one table is created. So Vrishav, what I will use, मुझे देखना है कि अभी तक मैंने कौन कौन सी टेबल्स बनाई है, तो मैं क्या क्या कौन सी कमांड यूज करूंगी इसमें. कंस्ट्रेंट. व्हाट? कांस्टेंट कमांड. शो टेबल्स कमांड. याद आया? So I have created here T1, T2 and T3 command. Okay. Now, now suppose I want to create a new table. I have created it create table. My now next table is T4. And here I took the name, sorry, I took roll number int. Then I took only hobby, care, and I took the size 20. And here I had specified default, and if suppose my default value is dance, अगर आप डांस नहीं डालोगे तो ये कोई भी वैल्यू नहीं डालोगे. ओके. अब इसका इफेक्ट कैसे आता है देखो. सपोज आई हैव इंसर्टेड अ वैल्यू, इंसर्ट इनटू T1 values. Fine. And then suppose roll number is 101 and I have inserted the value for suppose music. Got it? It's saying column count does not match with the okay, fine. I by mistake I took T1. What should I do? I need to take T4. So I have
correcting my values T4 and fine. One record has been inserted. So I'll show you my record. First, select star from T4. Got it? Now you can see that right now music is shown. So when your dance will be shown? Suppose now I had inserted a value. Insert into T1. I took only one field role. Then I came values. And here I had insert, sorry. Yeah, it will not come in quotes. This time I took only roll number and which is 102. I did not make the entry in the hobby. Fine. मैम T4 होगा ना? सॉरी सॉरी वो क्या T1 की इतनी आदत पड़ गई ना. It's T4. Fine. Now I'll see my table. So can you see that in 102 record, I have inserted only roll number value. I did not taken any dance value. So what will happen? By default, the dance will be there. Got it? Now, what will happen if you think that, suppose, मैं यहाँ पे कोई null value ले लेती हूँ. I took null. So don't think that in place of null, it will show dance. No. You had made your choice to make the entry null. अगर आप खुद फोर्सफुली नल डालोगे तो वो नल ही शो करेगा. बट अगर सेकेंड मेथड का जब हम यूज करते हैं और हमने कोई नल वैल्यू नहीं डाली है, उस केस में ये आपको क्या शो करेगा? डिफॉल्ट वैल्यू. कोई कंफ्यूजन है अभी? नो मैम. अब एंड जैसे डिफॉल्ट वैल्यू शो करेगा, तो अगर नल डाला तो क्या आएगा? तो नल ही आएगा. जैसे सपोज मैं आपको एक टेबल बताऊं, मेरी T1 टेबल. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1. ठीक है. अब यहाँ पे मैं सेकंड मेथड यूज कर रही हूँ डेटा इंसर्ट करने के लिए. मैंने लिखा इंसर्ट इनटू T1 और यहाँ पे मैंने फील्ड बता दिया कि मुझे सिर्फ नेम में वैल्यू चाहिए और किसी में नहीं चाहिए. ठीक है. और मैंने यहाँ पे नेम में वैल्यू डाल दिया, सपोज राहुल. गॉट इट. और जब मैं अपनी टेबल को वापस देखूंगी T1 को, सो यू हैव सीन दैट कि यहाँ पे राहुल था और यहाँ पे मैंने कोई फील्ड नहीं लिया तो नल और नल आ गया सिस्टम के थ्रू. अगर यहाँ पे मैंने कोई डिफॉल्ट वैल्यू ले रखी होती, जैसे अब अगर मैं DESC करके T4 का स्ट्रक्चर बताऊं आपको, तो यहाँ पे आपने देखा कि हॉबी, कैरेक्टर और डिफॉल्ट वैल्यू में डांस. मीन्स अगर आप कोई वैल्यू नहीं डालते हो तो वो डांस दिखाएगा. अब जब मैंने आपको सेकंड मेथड यूज किया, इंसर्ट इनटू T4, और T4 के बाद मैंने क्या बोला कि मुझे सिर्फ रोल नंबर में एंट्री डालनी है और वैल्यूज डाला और मैंने यहाँ पे डाल दिया 103. अगर मेरे यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट नहीं ले रखा होता तो क्या शो करता? वो नल. जैसे कि आपको पुरानी रिकॉर्ड में मैंने आपको दिखाया. बट बिकॉज ऑफ मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू ले रखी है, इसलिए यहाँ पे आपको, जब आप इस टेबल को देखोगे, देन यू कैन सी दैट 103 डांस. जब तक आप खुद से नल नहीं डालते, इट विल शो यू योर डिफॉल्ट वैल्यू. बट अगर आप खुद फोर्सफुली नल डालते हो तो नल ही शो करेगा. डोंट थिंक दैट कि मैंने नल डाला फिर भी मैंने तो डिफॉल्ट वैल्यू लगाई है. डिफॉल्ट कब काम करता है? जब सिस्टम को पता है कि इसने 4 कॉलम बनाए हैं और एक कॉलम में इसने डिफॉल्ट वैल्यू रखी है, बट वो उस डिफॉल्ट वैल्यू को फिल नहीं कर रही, तो मुझे बाय डिफॉल्ट वही वैल्यू यूज करनी है जो डिफॉल्ट में सेट है. ओके, गॉट इट? यस मैम. गॉट इट. हालांकि ये आपके सीधे कोर्स में नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा सा प्लस नॉलेज दे रही हूँ ताकि कभी भी कंस्ट्रेंट या ऐसे कुछ वर्ड्स दिमाग में आए तो आपको ध्यान होना चाहिए. ओके, इट्स नॉट डायरेक्टली इंक्लूडेड इन योर कोर्स. गॉट इट. अब उसके बाद एक चेक कंस्ट्रेंट. हालांकि चेक कंस्ट्रेंट माई सीक्वल में वर्क नहीं करता है. जो चेक कंस्ट्रेंट है मैं उसका सिर्फ आपको रोल बता रही हूँ, बट अगर आप उसको अप्लाई करोगे तो वो नहीं होगा. ठीक है. ये एक ऑब्लिगेशन है कि माई सीक्वल चेक कंस्ट्रेंट को फुलफिल नहीं कर पाता.
ठीक है। बट अदर जो आपके सॉफ्टवेयर हैं जैसे ओरेकल है, एसक्यूएल प्रो है, उसमें ये चेक कंस्टेंट वर्क करता है। अब इसका मतलब क्या है? इट चेक्स द वैल्यू अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अगर जैसे मैंने बोला कि क्रिएट टेबल T1, रोल नंबर फील्ड बनाया, उसमें मैंने चेक कंस्टेंट लगा दिया कि जो रोल नंबर है वो 0 से बड़ा ही होना चाहिए। या मैंने कोई बैंक में अकाउंट बना रही हूँ मैं, और मैंने चेक कर दिया कि जो फर्स्ट बैलेंस हो वो 5,000 और अबाव ही होना चाहिए, बिलो नहीं होना चाहिए। मैं एक नई टेबल बना रही हूँ, उसमें मैंने चेक किया कि जो मेरी वैल्यूज हैं उसमें जो स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन से पास है सिर्फ वही बच्चे मुझे दिखने चाहिए, मीन्स जिसके परसेंटेज 60 हो। तो मैं चेक कर रही हूँ कि जो 60 अबाव होगा या 60 होगा, मुझे वही बच्चे एंट्री करना है। तो अगर गलती से भी आप फ्लो फ्लो में कुछ गलत एंट्री कर रहे हो तो वो आपको नहीं करने देगा। पर अभी माई सीक्वल में चेक कंस्ट्रेंट वर्क नहीं करता है, अगर मैं लगा भी दूंगी तो भी ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, बस इसको एक बार समझ लो। सो मैंने क्या किया, एक टेबल बनाया T1, रोल नंबर लिया, इनटू उसका डेटा टाइप लगाया, और चेक कंस्टेंट लगा दिया, चेक करो। फिर ब्रैकेट के अंदर आपको कंडीशन देनी कि जो रोल नंबर है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। और ऐसे ही मैंने हॉबी बना दिया और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दिया। ठीक है, ये चेक कंस्टेंट आपके कोर्स में नहीं है, बस इसका रोल ध्यान रखो आप। गॉट इट? यस Yes, मैम। ma'am. अब बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टेंट है प्राइमरी की, बोर्ड में भी इससे रिलेटेड कई बार पूछा जाता है। अब प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की कंस्ट्रेंट इंश्योर दैट नो वैल्यू मस्ट बी नल और ब्लैंक एंड डुप्लीकेट। आपको पता है प्राइमरी की इज द कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिक एंड नॉट नल कंस्ट्रेंट। जैसे मैंने आपको यूनिक कंस्ट्रेंट बताया था, तो वो यूनिक पे ही ट्राई करेगा। अगर आप कोई डुप्लीकेट वैल्यू कर रहे हो तो वो आपको मना करेगा, बट अगर आपने कोई वैल्यू नल छोड़ दिया तो वो आपको कोई मना नहीं करेगा, नल आप डाल सकते हो यूनिक में। और नॉट नल किया तो वो सिर्फ ये चेक करेगा कि कोई वैल्यू खाली नहीं होनी चाहिए, चाहे डुप्लीकेट हो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। बट अगर आपने प्राइमरी की सेट किया तो दोनों चीजें चेक करेगा कि वो डुप्लीकेट भी नहीं होना चाहिए और नल भी नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं बैंक में अकाउंट ओपन करवा रही हूँ तो मेरा अकाउंट नंबर प्राइमरी की होगा। क्यों? क्योंकि मेरा अकाउंट नंबर, क्या वृषा का और कुंजल का अकाउंट नंबर सेम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्या दोनों के रोल नंबर सेम हो सकते हैं? नहीं। क्या दोनों का आधार आईडी सेम हो सकता है? नहीं। ओके। अब ये ऐसे फील्ड्स हैं जो हमेशा यूनिक भी होते हैं और जिनकी हमेशा एग्जिस्टेंस भी होती है, हम उनको खाली नहीं छोड़ सकते हैं। आज की डेट में हर बंदे का, हर पर्सन का आधार आईडी है। हर पर्सन का जो भी बैंक अकाउंट है वो यूनिक है, वो किसी से मैच नहीं होता है। ओके। अब इसको हम सेट कैसे करते हैं? आप सीधे माई उस पे आइए अपनी स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने किया क्रिएट टेबल T5, और इसमें मैंने अगेन लिया एक फील्ड रोल नंबर, उसका टाइप किया इंट, और इसके आगे मैंने लगा दिया प्राइमरी की। ठीक है, एक और लिया मैंने, मीन्स रोल नंबर आप ना तो डुप्लीकेट छोड़ोगे ना आप उसको ब्लैंक छोड़ोगे। एक मैंने ले लिया नेम केयर, और उसकी साइज ले ली मैंने सपोज 15। मैंने दो ही फील्ड लिए, मुझे जस्ट आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब हम इसमें चेक करते हैं कि क्या ये हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है क्या। तो मैंने क्या, इंसर्ट इनटू T5 वैल्यूज, एंड देन आई हैड इंसर्टेड रोल नंबर, मैंने डाला 101। देन आई हैड इंसर्टेड माय नेम, दैट इज प्रिया। फाइन। नाउ आई एम जस्ट चेकिंग व्हाट आई एम डूइंग। मैं 101 गलती से वापस डाल रही हूँ, ओनली आई चेंज द नेम। ओके, कुछ गलती हो गई थी, मैंने एक कोट नहीं लगाया। अब ये मुझे क्या बोल रहा है, डुप्लीकेट एंट्री 101 फॉर की T5 प्राइमरी, कह रहा है कि प्राइमरी की है, आप इसमें डुप्लीकेट एंट्री नहीं कर सकते। चलो ठीक है, हम इसको सही कर देते हैं। अब मैं डुप्लीकेट तो नहीं कर रही हूँ, पर मुझे इसका रोल नंबर नहीं पता तो मैं इसमें नल कर देती हूँ। ठीक है, तो ये मुझे क्या बोल रहा है, कॉलम रोल कैन नॉट बी नल, कि आप इसमें नल एंट्री भी नहीं कर सकते। आपको इसमें एंट्री करनी ही करनी है, ना तो आप इसको डुप्लीकेट कर सकते हो ना आप इसको नल कर सकते हो। यू नीड टू इंसर्ट अ
वैल्यू, इसको बोलते हैं प्राइमरी की, कि आपकी टेबल का प्राइम फील्ड है जिसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते उसकी वैल्यूज को। अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्कूल में एडमिशन लिया तो आपको एक एडमिशन नंबर मिलता है, किसी भी स्कूल में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको एक एडमिशन नंबर मिलता है। ओके, क्या वो एडमिशन नंबर किसी का भी सेम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्या मैं ऐसा हो सकता है कि स्कूल में बच्चे ने एडमिशन ले लिया और मैंने उसको कोई एडमिशन नंबर ही नहीं दिया, क्या मैं उसको खाली छोड़ सकती हूँ? नहीं। अगर उस बच्चे ने एडमिशन लिया है तो उसको एडमिशन नंबर भी मिलेगा, दैट इज वो नल नहीं हो सकता और वो डुप्लीकेट भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी एडमिशन नंबर सेम नहीं हो सकता, हर बच्चे का यूनिक एडमिशन नंबर होगा। गॉट इट? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम मैम या बच्चा? तो इसमें एंट्री